بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے اس وقت۔ اگر آپ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ دیکھیں کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم ترین پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ججز کو بھی پیغام دے دیا کہ عدالتیں پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی فتنہ قرار دیا، سیاسی ٹولہ کہا، غیر قانونی ٹولہ کہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، جس کی وجہ سے 9 مئی ہوتا ہے۔ تو آج جناب رات کے جو خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کو گھیر لیا گیا اور پھر عمران خان کو بم سے اڑانے کا پلان پکڑا گیا۔ یہ خبر کیا ہے، رات کو ہوتا وہاں پر کیا رہا، یہ بڑی اہم ترین تفصیلات ہے جو جناب میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اڈیالہ جیل میں بم جو ہے وہ پکڑا گیا۔ عمران خان صاحب کو بم سے اڑانے کا پلان تھا، این موقع پر جا کر کارروائی ڈلتی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کے اس ویلاگ پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر عمران خان فوج کے حوالے کر دیے گئے، فوج نے جناب اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا، یہ بہت بڑی اور ایکسکلوسیو خبر ہے جو میں آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر تیسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ٹیک اوور کرنا، اور اس وقت جناب جو ہوائی اڈے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں جانی کیفیت ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو ٹیک اوور کس نے کر لیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کچھ اور اہم خبریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رؤوف حسن صاحب کو آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انٹینشن عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ان کو پیش کیا گیا۔ وہاں پر ان سے سوال پوچھا گیا کہ رؤوف حسن آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آج ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جناب معاملہ یہ تھا کہ ایف آئی اے نے رؤوف حسن کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پر پی ٹی اے کی جانب سے وکیل لطیف کھوسہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے عدالت سے رؤوف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برآمد کرنی ہے، ڈیوائسز ملیں گی تو مزید تفتیش ہوگی۔ یعنی کہ پوری پی ٹی آئی کیا ایک ڈیوائس پر چلتی ہے؟ اور بھائی ہمیں یہ تو بتائیں کہ سوشل میڈیا ڈیوائسز ہوتی کیا ہے، ہم بھی لگا لیں، ہم بھی مشہور ہو جائیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا ڈیوائسز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جا کر اچانک چھاپا بھی مار دیا پی ٹی اے کے سیکریٹریٹ پر، پھر آپ بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ڈیوائسز، تو ایسا تو جناب نہیں ہوگا۔ اب آپ نے جناب جو عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل میڈیا کے جو کوآرڈینیٹر تھے، اس کے کھاتے میں آپ نے ایٹم بم ڈال دیا کہ وہ جناب کوئی اس سے ہم نے بم برآمد کرنا ہے۔ تو آپ بتانا کیا چاہتے ہیں اس پورے ملک کو؟ آپ پیغام کیا نہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں؟ اور پھر دوسری جانب اعجاز چودھری صاحب جو ہیں جن کو عدالت میں پیش کیا گیا، عمران خان صاحب کے دھرینہ ساتھی، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے جناب یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ آپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے جمہوریت؟ رؤوف حسن کو فوراً رہا کریں۔ چند ماہ پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں فعال ہوا، اور رؤوف حسن سوشل میڈیا نہیں جنرل میڈیا کو کور کرتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس بندے پر جو ظلم اور بربری کی انتہا ہوئی ہے، 1-1.5 سال کی شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس کے بولنے کا انداز آپ اندازہ لگائیں کہ اعجاز چودھری کہہ رہے کہ رؤوف حسن کو رہا کرو، اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جہاں جذبہ ہے ملک اور قوم کے لیے، جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں عمران خان اور بشریٰ بیوی کے حوالے سے، کہ عمران خان اور بشریٰ بیوی کو جیل میں بین العالمی قوانین کے تحت سہولیات فراہم کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو دائر کی گئی ہے اس میں سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور چیف سیکرٹری پنجاب، نیب، ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ جناب یہ فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان کے دونوں کے سیل اور فراہم سہولتوں کی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کی جائے، یہ بھی کہا گیا۔ اور درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کو کبھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اگر ہاں تو کیا جواز ہے؟ درخواست جو ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ اور دیگر سیاسی قیدیوں کو اعلیٰ کلاس کی سہولتیں دی جائیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جیل انتظامیہ کو عالمی قوانین کے مطابق آئینی شکوں پر جیل رولز پر عمل کا حکم دیا جائے۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی فہرست اور درانیہ پر رپورٹ بھی لی جائے۔ یہ جناب ایک عام ترین خبر ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو جہاں سے حکم آتا ہے وہ وہاں سے بات کرتے ہیں۔
पीपल्स पार्टी को जो मैंने आपके सामने खबर जो है ब्रेक की थी कि पीपल्स पार्टी को ये ऑफर हुई है कि अगर आप पीटीआई के ऊपर पाबंदी की जो है वो मुखालफत नहीं करते, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी, फिर वो उसकी हिमायत में चले गई। आर्टिकल 6 पर इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उनको कहा गया कि अगर आप इसकी हिमायत करेंगे तो आपको अगली वफाक के अंदर हुकूमत मिल जाएगी। पहले जब मुखालफत हो रही थी, जैसे इनको ये ऑफर मिली, पीपल्स पार्टी ने फौरी हिमायत का ऐलान कर दिया। अब जनाब खबर ये है कि मकसूद नशिस्तों का केस था, नून लीग ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी थी। अब नून लीग के बाद यह है कि नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील जो है वो दायर कर दी है, जिसमें हामिद रजा इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को जो है वो जनाब फरीक बनाया गया है। तो आप देखते हैं कि ये केस कब लगता है कि इसमें दबाव डाला जा रहा है जज के ऊपर कि वो नजरसानी अपील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मखसूस नशिस्तें ना दें, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जब ये फैसला आया था मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने से सदारती इंतखाब का कदम होता है, सेनेट का इंतखाब का कदम होता है, सेनेट में पीटीआई के पास इजाफी नशिस्तें आ जाएंगी। उसके अलावा मुराद सईद की वापसी हो सकती है। बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट की थी, मैं सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद था जब ये फैसला आया था। अब ये जनाब मैंने 1 बाय 1 चीजें आपके सामने तो हैं वो रख दी हैं। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खतरनाक तरीन खबरें हैं और ये कुछ अच्छी खबरें नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मेगा किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से क्रैकडाउन जारी है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। इस वक्त एक बार फिर से सोशल मीडिया को वाइप आउट करने के लिए सारा कुछ जो है वो जनाब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस को टेक ओवर करना और इस वक्त हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर रेड अलर्ट किसने जारी किया है, किसने वज़ीर आज़म हाउस को टेक ओवर कर लिया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। सीनियर सहाफ़ी हैं वो जनाब ये दावा करते हैं, वो दावा क्या कर रहे हैं कि जागते रहना, मुझ पर रहना ना रहना, कोई मुल्क से बाहर ना जाना पाए, हर तरफ इकदामात जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, उसके अलावा शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज समेत सब पर प्यारे लगा दिए गए हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई किसी को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। माशाल्लाह के दौर में क्या होता था, हवाई अड्डों के ऊपर जो है वो प्यारे लगा दिए जाते थे, किसी को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। मुशर्रफ दौर में भी ये सारा कुछ हुआ था ना, आपने देखा होगा। तो एक बार फिर से जनाब वो साफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े मोतबर साफ़ी, बड़े उनका नाम जो है वो मेरे ज़हन से निकल गया है। उन्होंने पहले भी खबर दी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने जा रहा था तो उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने जा रहा है। तो उसके बाद उनको काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन उन्होंने जर्नलिस्ट की जान जो है बचा ली थी। तो ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो है वो समझे जाते हैं। उनका ये दावा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं या फिर ये केस काजी की एक्सटेंशन के बाद लगता है तो डेफिनेटली काजी साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिली तो मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो लग जाएगा। मैंने मार्शल लॉ जो है वो रोका हुआ, तो कुछ बड़ा होने वाला है। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। कल DCISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो निज़ाम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो लिहाजा कल किसी की साइड जो है वो नहीं लगी DCISPR की साइड से। तो DCISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह करती है कि 1 मैन आर्मी एक ही धारा है, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और वही इस मुल्क को देखेगी और मुल्क में किसी भी वक्त इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त सिस्टम को इंटरनेशनली जो है वो कोई मदद हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह पर इमरान खान का तूती बोल रहा है। इमरान खान जो इस वक्त अपने मजमून लिख रहे हैं, वो जनाब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, उसने भी इस वक्त बंद कमरों के अंदर जो है वो हलचल मचाई हुई है। तो खौफ जो है वो जनाब बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त जनाब किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। कुछ भी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रावलपिंडी के ड्राइंग रूम्स पे जो है बड़ी खिचड़ी पक रही है और वो फैसला फिर इस्लामाबाद में इम्पोज किया जाएगा। ये एक खबर जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाए कि जनाब इमरान खान को फौज ने अपनी गिरफ्त में लेना है, इमरान खान के ऊपर मिलिट्री ट्रायल होना है। जनाब इमरान खान साहब ने कल जो है वो इतराफ़ किया। खान साहब ने कहा कि मैंने हुक्म दिया था कि जाए GHQ में जाकर आपने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की, फिर इन्होंने उसको बगावत के जुमरे में ले लिया। मैंने बगावत नहीं की, मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज करें। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, किसी लोग ने, किसी मेरे कारकुन ने जो है वो इंतशारी जो है वो एहतजाज नहीं किया, मैंने सबको रोका। उस वक्त खान साहब ने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान न्याजी को फौरी तौर पर अडयाला जेल से किसी और जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड केस की मुतल्लिक के मुकदमे की इस्मात मुकम्मल होने के बाद जो है वो किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो चल रहा है। शाह महमूद कशी साहब को जनाब लाहौर की अदालत जो है वो कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल करने की खबरें, और फिर अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल किया जा सकता है। अब कैसे मुंतकिल किया जा सकता है? इमरान खान को फौजी अदालतों में, फौजी जेल के अंदर, मिलिट्री कोर्ट में या
मिलिट्री जेल में जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, जो खबर है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस अभी उसकी समाज चल रही है। 190 मिलियन पाउंड केस में सिस्टम ने ऊपर कड़ाई चढ़ा ली कि खट्टक ने देना बयान था इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो उनका जो बयान था वो इमरान खान के हक में चला गया कि उन्होंने अदालत में कोई और बयान दिया, इन्वेस्टिगेशन में जनाब उन्होंने कोई और बयान दे दिया। तो जराए ने बताया है कि इमरान खान ने पीर को इतराफ करके अपने कारकुनों को जज को जाकर जांच करने की खुद हिदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह हमवार पूरी तौर पर हमार कर रही है। ये सहाफ़ी हैं साले हैदर, जियो न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने पीर को जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त 9 मई के मुकदमात हैं उसके हवाले से मुझे फौजी हुकाम के हवाले किया जा सकता है और मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, जो उसे फौजी जेल में रखेंगे। मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में आज से तहरीक इंसाफ के बारे में अहम मामलात की समाअत शुरू हो रही है, जिनमें कमीशन को ताहाल इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिले, जिससे उसके वजूद के लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। जंग को हद दर्जा काबिल एतमाद राय ने पीर की शाम को बताया कि 9 मई के मरकजी मुकदमे की समाअत आइंदा माह शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मुलजिमों को लाहौर या उसकी नमा की किसी जेल में जाना जरूरी होगा। इस मुकदमे को लाहौर में कायम अदालत जो है वो सुन रही है। द्राई ने बताया कि लाहौर की कोट लखपत जेल के अलावा साहिवाल की ड्रेसिक जेल में दहशतगर्दी और खतरनाक जुर्म में मुलव्वस मुलजिमों के लिए अलग से बैरक मौजूद है और दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत उन जेलों में जाकर मुकदमे की समाअत करती है। और अगर इमरान न्याजी के मरकजी मुकदमे को फौजी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होने का फैसला नहीं होता और अगर मुकदमे में जिसमें इमरान खान पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन दफात लगाई गई हैं उसका हवाला मौजूद है, जिनमें सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाओं की गुंजाइश शामिल है, फौजी अदालत अपने किसी हिरासती मरकज में इमरान खान समेत तमाम मुलजिमान को रखने का हुक्म दे सकती है। ऐसे मरकज की निशानदही और मुकाम से आगाह करना मुतलका हुकाम पर लाजिम नहीं होगा। तो लिहाजा इमरान खान को किसी खुफिया मुकाम पर रखा जा सकता है। इमरान खान पर ऐसी दफात लगाई गई हैं जिसमें सजाए मौत, उम्र कैद जो है वो लग सकती है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। इमरान खान को फौजी जेल में रखा जा सकता है। इमरान खान साहब जो है उनको उनका ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा। इस खदशे का इजहार इमरान खान साहब कल भी कर चुके हैं और फिर उनको एक जुमला जो उनका एक सेंटेंस उन्होंने बताई, जो एक स्टेटमेंट दी कि मैंने कहा था जाकर जीएच के सामने पुरअमन एहतजाज करें, उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जो है उनको अब सजाए मौत और उम्र कैद तक लेके जा सकते हैं अगर उन पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। तो ये एक प्लान जो है वो रियासत की जानिब से बनाया गया है। असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने इस स्टेटमेंट की सख्ती से तरदीद कर दी है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मैं वहां पर मौजूद था, मीडिया ने इसको गलत रिपोर्ट किया, ये कहां से रिपोर्ट हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर की बात कर रहे हैं। और फिर असद कैसर साहब ने कहा कि इमरान खान ने 9 मई को जीएच को जाने की कॉल देने का इतराफ नहीं किया है। मीडिया पर गलत खबरें चल रही हैं और ये बयान गलत मंसूब किया जा रहा है। जीएच को एहतजाज करना किसी की इनफरादी सोच तो हो सकती है, लेकिन इज्तिमाई फैसला बिल्कुल नहीं था। ये जनाब असद कैसर साहब ने उस खबर की जो है वो तरदीद करती है। अब जनाब रात को फिर अडयाला जेल को घेर दिया गया। इमरान खान को बम से उड़ाने का प्लान था। ये मामला क्या बना जनाब, रात को होता यह है कि अडयाला जेल के जो गेट नंबर 4 है उस पर एक कार सवार जो है वो हमला करता है। वो जाकर सीधा गाड़ी को गेट नंबर 4 पर जाकर लगाता है और सिक्योरिटी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी सिक्योरिटी बैरक को तोड़ते हुए जेल में दाखिल हो जाती है। और उस गाड़ी सवार का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से था, वो फैसलाबाद की तहसील समुद्री, और फिर जनाब जो गाड़ी का नंबर था वो लाहौर का नंबर था। तो लिहाजा कप्तान की जान को खतरा है। पहले भी इस तरह की खबरें चलाई गई कि जो है वो हम 111 ब्रिगेड वहां पर भेज रहे हैं, इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई, सिक्योरिटी इश्यूज है। और फिर दहशतगर्दों वाला हमला वहां पर बताया गया कि एक बार कुछ सिक्योरिटी जैकेट मिल गई कि यहाँ से बम मिला है। और अब ये गाड़ी के जरिए जो ये सारा कुछ करवाना, इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम जेल के अंदर भी बैठे हो तो हम तुम्हें यहाँ पर भी मार सकते हैं, हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें बम से भी उड़ा सकते हैं। और फिर इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए भी इसका जो है वो सहारा लिया जा रहा है। तो ये रात को जो है वो जेल अडयाला जेल को जो है वो घेरा गया और इमरान खान साहब उनकी जान को खतरा है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।